وَأَلْهِمْنِي التَّقْوَى. اگر آدمی جی گھر میں ٹھیک نہیں رہے گا اور باہر ٹھیک رہتا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو دو طرح کا اخلاق اپنانے پر آمادہ کرتی ہے. دوہرا رویہ. دوہرا رویہ. اسی دوہرے رویے کا نام ہے مکاری. جی اچھا، آپ بہت بڑا جملہ استعمال کر دیا. جی دوسری بات جو میرے آدمی اگر اپنے خون کا نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اپنے رشتہ دار کا نہیں ہے، اپنے بھائی کا نہیں ہے، اپنے خاندان کا نہیں ہے، تو باہر والوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر جی کہ انسان کو اول بے شک بااخلاق ہونا چاہیے، مگر پہلے گھر میں ہو. جی اچھا اس کے بعد آپ باہر کا بھی اخلاق آپ کا ظاہر سب سے اچھے طریقے سے جی ملنا جلنا چاہیے. لیکن جس آدمی کو اپنے گھر والوں سے رابطہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آپ کے نقل کروں، چوتھے امام نے پانچویں امام سے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، جی جی لیکن اس بہانے سے ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہا کہ پانچویں امام سے چوتھے امام نے فرمایا بنیہ خمسۃ لا تصاحبهم ولا ترافقهم ولا تحادثهم في الطريق. 5 لوگ ہیں، ان سے رابطہ مت رکھنا، دوستی مت رکھنا، اچھا ان کے ساتھ سفر مت کرنا، ان سے بات چیت بھی مت کرنا. منائی کی. اچھا امام نے پوچھا یا ابت من ہم، وہ 5 لوگ کون ہیں؟ اب جتنا یاد ہے میں اس کو نقل کرتا ہوں، خدا کرے کہ پورا یاد ہو، لیکن مین سوال جو آخر وہ ہے ذہن میں. جی فرمایا نمبر 1 الماجن الفاجر، بدکار آدمی، بد کردار آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا وہ ہے کہیں نہ کہیں تمہارے اندر اس کا اثر آئے گا، جی جی لہذا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو. مت کرو. 2 وللاحمق، بیوقوف کے ساتھ. بیوقوف کے ساتھ. جی اس لیے کہ بیوقوف اگر بیوقوف ہے تو تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، تو بھی نہیں ہوگا. بٹ اپنی بیوقوفی کی بنیاد پر نہیں پہنچا پائیں گے. نقصان پہنچا دے گا. 3 ولل کذاب، جھوٹا آدمی. جی واہ. جھوٹے آدمی کے لیے امام نے کہا کہ اس کی دوستی کا سراب، سراب کے مانند ہے. سراب کیا ہے؟ یہ سینی سے سراب ہے، یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ شاید شین کی جگہ سراب لفظ ہی جو ہے وہ اس کا پروننسیشن سراب ہے. سراب یہ عربی لفظ ہے، اچھا قرآن میں یوز ہوا ہے. گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں دور سے آپ ریتیلی جگہ کو دیکھیے تو لگتا ہے جیسے پانی چمک رہا ہے. ہاں ہاں، گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پہ بھی کبھی کبھی لگتا ہے احساس پانی ہوتا چمک رہا ہے. جب آپ قریب جائیے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو بالکل. کہتے ہیں سراب. اچھا امام فرماتے ہیں کہ جھوٹے سے تعلقات سراب کی مانند ہے. اچھا جی یبعد لک القریب ویقرب لک البعید، قریب کو نزدیک، نزدیک کو دور، اپنے کو پرایا، پرائے کو اپنا کر اپنا کر دینا. دینا. 3 ہو گئے. چوتھا ولل بخیل، کنجوس سے دوستی مت کرنا. اس لیے کہ فإنه بایعک بعقلۃ او اقل من، کنجوس آدمی تم کو 1 لقمہ اس سے کم پر بھی بیچ سکتا ہے. جب تم کو سخت ضرورت ہوگی اس وقت بھی سوچے گا یار پتہ نہیں واپس کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. لیکن مین آپ کا سوال کا جواب یہاں ہے. فرماتے ہیں ولا قاطع لرحمہ، اور جو قطع رحم کرنے والا ہے اس سے کبھی دوستی تعلقات مت کرنا. اس لیے کہ سیدھی بات ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کا نہیں ہے، بالکل. اپنے خون کا نہیں ہے، اپنے بلڈ کا نہیں ہے، وہ منہ بولی دوستی کا کیا ہوگا؟ وہ مکاری ہے، وہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو یہ آخری والا جو ہے کہ اور قطع رحم کرنے والوں سے دوستی مت کرنا. امام فرماتے ہیں قرآن میں 3 جگہ اس آدمی کے اوپر لعنت کی گئی ہے جو قطع رحم کرتا ہے. جو اپنے گھر میں صحیح نہیں رہتا. اور آپ ایک بات اور سن لیجئے جی کہ گھر میں آپ نے کہا صاحب وہ گھر والے کسی سے کہنے نہیں جا رہے ہیں، ہاں وہ دیکھ نہیں رہے ہیں جی. کیا ہے باہر والے. انہوں نے نیلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے. جی. ایک صحابی گزرے ہیں، نام ہے ان کا سعد ابن معاذ. کیا نام ہے؟ سعد ابن معاذ. بہت زبردست آدمی، مومن آدمی، جی شہید ہو گئے.
जवान आदमी है, शहीद हो गए, पैगंबर उनके गुस्ल में शरीक है, दफन में शरीक है। तारीख कहती है कि जब जनाजा जा रहा था साद का, तो रसूलुल्लाह ऐसे चल रहे थे, पैर उठा करके। अच्छा। लोगों ने कहा साहब इतनी भीड़ तो नहीं है कि तुम्हें क्या पता, इतने फरिश्ते साद के जनाजे में आए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। यहां तक आ गए आप। साद की माँ जिंदा थी, किसी का जवान बेटा शहीद ही सही, लेकिन माँ को तकलीफ होगी ना। साद की माँ कब्र के पास आई, आगे कहने लगी कि बेटा मैं तुमको रोने के लिए आई थी, बट नहीं रोऊंगी तुम्हारा मर्तबा देख करके। पैगंबर ने कहा क्या कह रही हो, स्लो स्लो स्लो, आहिस्ता। साद के ऊपर इतना जबरदस्त फिशार कब्र हुआ है इस वक्त कि साद की हड्डियां चूर चूर हो गई, इतना मर्तबा। और ये अब जो असहाबे किराम थे उनको ताज्जुब हुआ कि एक तरफ अभी पैगंबर ने फरमाया इतने फरिश्ते जनाजे में शरीक हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, और अभी ये तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह क्या साद खैर पर नहीं थे? जी। का बिल्कुल थे। का साद जन्नती, का बिल्कुल जन्नती है। का फिर ये क्या है? जी। का साद सब कुछ ठीक है, वही आप वाला सवाल, लेकिन घर के अंदर इनका अखलाक ठीक नहीं था। ओ, यानी कितना जरूरी है। तुमने बहुत अच्छी बात कही बेटा, माशाल्लाह। जो जी। साजिद, बहुत ही बेहतरीन तौर पर मौलाना साहब ने इस बात को वाजे कर दिया है हमारे नाजरीन के लिए कि ये दोहरा रवैया जो हम अपनाते हैं कि बाहर बड़ा ही नेक किरदार हो हमारा, लेकिन घर में चाहे हम अच्छा जो भी करें, इस बात को किस तरह से इसकी मजम्मत की गई है, और काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल भी मौलाना साहब ने शेयर किया। तो वहीं अगर इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएं तो एक और चीज़, एक और मसला, हम अपने अपनों के साथ अच्छे हो, अपने दोस्तों के साथ अच्छे हो, लेकिन जहाँ बात दूसरे मज़ाहिब के लोगों की आती है पूरा रवैया बदल जाता है। जबकि कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत 83 में अल्लाह ने फरमाया है स्पीक गुड टू पीपल, लोगों से अच्छी तरह बात की जाए। हम हदीस भी देखते हैं पर्सन इज ईदर योर ब्रदर इन फेथ और इन ह्यूमैनिटी, यानी या तो वो आपका भाई है या फिर इंसानियत में आपके साथ है। लेकिन फिर भी दीगर मजहब के लोग या दूसरे रंगो नस्ल के लोगों के साथ इतना फर्क किया जाता है मौलाना साहब, तो ऐसे लोगों के बारे में जो फर्क करते हैं उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? यानी सिंपल भेदभाव वाला हिसाब किताब। देखिए वही मैंने कहा इससे पहले वाले के दो चीजें हमारे यहाँ पैरेलल चल रही हैं जी। एक सामाजिक कॉन्सेप्ट और एक दीनी नजरिया। जी। वो किसी का है नहीं, मिसरा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये परफेक्ट यही है, दीन नहीं सिखाता। किसी ने आगे पूछा इमाम से, उसूल काफी में ये रिवायत है कि कैफ नस्नउ बैनना व बैन खुलताइना अल्लज़ीना लैसु अला दीनिना, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसा रब्त होना चाहिए उन लोगों से जो हमारे मजहब पर नहीं है। अच्छा। और अगर वो बीमार, वो क्या कहते हैं, हमारे साथ उठना बैठना है, तो उनसे हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? इमाम ने फरमाया जो तुम्हारे इमाम लोग करते हैं वो तुम करो। अच्छा। मतलब कभी अगर कोई बीमार होता है हम उनको देखने जाते हैं, जाते हैं। किसी का इंतकाल होता है हम उनके जनाजे में जाते हैं जी। तो आपका इमाम ये कह रहा है, आप क्या आपका दीन ये कह रहा है जी, अखलाक सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। कुरान ने इसी पर पैगंबर की तारीफ की है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बड़े जबरदस्त अखलाक पर फायज हैं। जी। या पैगंबर की पूरी कामयाबी का राज कुरान ने इसी चीज में रखा है। लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप तुद मिजाज होते तो फिर कोई आपके करीब ना आता। या वो एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक यहूदी का साथ हो गया, नॉन मुस्लिम का साथ हो गया, बातों बातों पता चला कि वो कहीं और जा रहा है, कूफे जा रहे हैं। अब मसलन चले ये यहाँ से टर्न होना है कूफे के लिए, वो यहूदी का रास्ता सीधे जा रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम सीधे चले जा रहे हैं उसके साथ साथ। अचानक उसको रुक, आप तो कूफा जाने वाले थे, कहाँ? तो वो तो रास्ता पीछे छूट गया उधर से। वो मुझे पता है रास्ता, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा सफर का साथ हो, कुछ दूर तुमको पहुंचा दूं। व्हाट इज दिस? जी। आपका इमाम ये कर रहा है, आप उनसे ज्यादा दीन समझते हैं? नहीं, आप उनसे ज्यादा मजहब समझते हैं। जी।
माँ साहब एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जहाँ पे हमें दीन का इस्तेमाल करना चाहिए हम वहाँ नहीं करते हैं Right. और जहाँ नहीं करना चाहिए हम वहाँ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं और नाम देते हैं दीन का। इसी से एक जुड़ा हुआ मसला है कि जब भी हम घर की बात करते हैं तो दोनों भाइयों के ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं। झगड़े लड़ाई की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सलूशन बताएं, क्योंकि झगड़े की सबकी अलग अलग वजह होती है भाइयों के। सलूशन आपकी नज़र में क्या है कि भाइयों का आपस में तालमेल अच्छा रहे, कोई तीसरा आके घर को खराब ना करे? देखिए, जो आपने कहा ना कि सोल्यूशन बताइए और झगड़े, देखिए सोल्यूशन उस वक्त तक निकल नहीं सकता जब तक आप वजह नहीं जानेंगे, जी है ना। जी तो ये आपका सवाल मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब है कि वो झगड़े की वजह में मत जाइए, सोल्यूशन क्योंकि बताइए। झगड़ा सबका सब भाइयों असल में तो झगड़ा है। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप जितने झगड़े होंगे, हाँ वो जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह अपनी जगह, हाँ हाँ लेकिन बकिया जो झगड़े होते हैं उसमें मेरे ख्याल में 90% बदगुमानी की उसकी बुनियाद है। 90%। आप जिस घर में चले जाइए, आप जी थोड़ी देर बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी भाभी ने इस तरह कहा, जी वो तो सब हमको देख के यूं मुस्कुरा रहे थे। क्या है? दीन ये कहता है खबरदार, जब तक आपको उसमें कोई अच्छी बात निकल सकती है, मसलन आप आ रहे थे, हमने यूं किया, ये भी झगड़े साहब मुझको देख करके टांट कर रहे थे, यूं मुस्कुरा रहे थे, जी आपको कैसे पता मेरी नीयत क्या है? जी तो सॉल्यूशन उसका यह है कि अगर कोई इख्तिलाफ की बात होती है जी जी तो उसमें जहां तक हो सके मुस्बत पहलू तलाश कीजिए, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड तलाश करेंगे तो काफी हद तक जो है वो झगड़ों में नहीं। अब फर्ज कीजिए आपका बेटा आगे कह रहा है कि चाची जान ने इस तरह कहा, जी, है ना, अब आप आगे, अच्छा ऐसे कैसे? मैंने इन लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज मेरे ऊपर वो तबसरा कर रही है, मेरे छोटे भाई की बीवी। यहीं से बात खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसी वक्त आप अपने बेटे से कह दिए, नहीं बेटा तुम समझे नहीं हो, तुम्हारी चची जान इस टाइप की नहीं है, उन्होंने जुमला हो सकता कहा हो, तुम समझे नहीं, उनका मतलब ये हो सकता है। तो जहां तक पॉजिटिव साइड निकल सकता है हाँ। वो निकालने की कोशिश कीजिए, झगड़े अपने आप खत्म हो खत्म हो जाएंगे। जाएंगे। मैं सब ये बात जो आपने कही है 100% मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, लेकिन नीलम देखा होगा कि तीसरा आदमी जब आता है तो भाई से तो हमारे बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब खराब हो बात गए, है। लेकिन तीसरे आदमी की भी ड्यूटी आप बता दें क्या है? क्या उसका काम है सिर्फ झगड़े में और ज्यादा तेल डालना? ये ऐसा है कि सबसे बढ़िया आदमी वो है जो दो लोगों को एक कर दे। जी ये रिवायत के जुमले मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। और सबसे घटिया आदमी वो है जो दो लोगों को दूर करें। दूर कर दे। सजा बहुत सख्त है। ज्यादातर दूर ही किया जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि अगर दो लोगों में कुछ इख्तिलाफ है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, न कि हवा दें उसको। जी और ऐसी जगहों पर देखिए, झूठ जो है उससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जी यहां तक रिवायात में है कि इल्लतुल किज़्ब अक़बहुल इल्ला, झूठ की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हुत्ततल खबाइस फी बैतिन व मिफ्ताहुहु अल किज़्ब, जी सारी बुराइयां एक रूम में बंद कर दी गई हैं, अच्छा, चाबी उसकी झूठ है। झूठ है, वाह। झूठ के लिए कुरान कहता है कि जो लोग ईमान नहीं रखते वो झूठ बोलते हैं। जी तो बहुत ताकीद की गई है कि आदमी झूठ से बचे। लेकिन वही अगर दो लोगों को एक करने की बात है जी तो यहां आप झूठ भी बोल सकते हैं। इतनी अहमियत है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर दो लोगों में आपके सामने किसी ने मुझको बुरा भला कहा या गाली दी, आपने आके मुझको बयान किया, अरे मौलाना साहब आपको तो फला साहब, किस डॉक्टर ने आपको लिखा है कि आप आके सच बोलिए हमसे? हाँ, एग्जैक्टली। कहीं नहीं बोलेंगे पर इस किसने मौके कहा कि पे। आप हमसे सच बोलिए कि मैं हाँ। उल्टा कर सकते हैं आप। अच्छा कहा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने। परमिशन है। जी यस, हाँ। मौलाना साहब आप उसके बारे में इतना मत सोचिए, बेचारा इतना खराब नहीं है, एक आध बार आपकी तारीफ किया, मैंने सुना तारीफ, दैट्स ऑल। जी ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे और जी। मामला भी अहसन, पॉजिटिव। दीन ये सिखाता है। पर बरक्स एक्चुअली हम वही करते दीन जो हैं। झूठ को इतना जबरदस्त कह रहा जी। है, वही दीन कहता है दो लोगों को मिलाने के लिए आप बोल दो, बोल दे। बोल दो। जी yes,
یس نیلم، سولوشن بہت اچھا تھا. اب بہت اپنا اچھا آپ تھا کا سوال کیا ہے اگلا؟ جی بہت زیادہ اچھا تھا ساجد. اور کافی سارے ایسے پرابلمس تھے جیسے باہر والوں کو جو زیادہ اہمیت دی جاتی
جاتی ہے, گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا بھی کہتے ہیں نا برتاؤ کیا جاتا ہے. مولانا صاحب نے